Hello, students. Good morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know, students, that we are done with Videshya Babu, that is Unit 5, right? And what Lucy found there, that is Unit 6, right? We have completed the revision of both the chapters. We have gone through the summary, question answers, and also the worksheet. So today we would be moving ahead with our chapter verbs, that is in your grammar textbook, right? And we would be revising the verbs, that is perfect tenses, today. So let's move ahead with this chapter and let's see what are perfect tenses, right? The perfect tenses talks about the actions that have just been completed. Normally, you know that there are three times, right? Present, past, and future. And the state of actions are divided into four parts, that is simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So today we are going to learn about perfect tenses. Now perfect tenses include three times. The first one is present perfect. Here we talk about the actions that have just been completed, right? That is called present perfect tense. For example, have increased. Then actions that were completed in past before a given past moment. मतलब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में मान लो दो एक्शंस हुई थी और एक एक्शन खत्म हुई जस्ट बिफोर द सेकेंड स्टार्टेड, मतलब पास्ट में ही दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई, उससे पहले पहली खत्म हुई है, राइट? देन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस. Okay, and the third is actions that will be completed before a given future movement, that is future perfect tense. Okay, but we are going to just learn present perfect, past perfect, present perfect continuous, and past perfect continuous in this chapter. So let's move on. Okay, so first we'll see present perfect tense. Now when do we use present perfect tense? When we talk about the actions that have just happened, that means the actions which have been just completed. Okay, उसके लिए हम लोग present perfect tense use करते हैं. For example, Tarika has completed her homework. Mother has left her mobile phone behind. There has been an accident on the highway. Right, so these are the actions which have just completed, and that's why we have used present perfect tense. And how do we form present perfect tense, students? We have to use has or have plus verb past participle. ठीक है, अब जब भी परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो तो हमें हैज़ या हैव यूज़ करना है ऑक्सिलरी वर्ब में, और हमारा जो वर्ब होगा वो होगा थर्ड फॉर्म में, राइट? दैट इज़ V3, मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा. हम हैज़ यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना? हैज़ कब यूज़ करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट मीन्स ही, शी और इट. और बाकी सबके साथ हमें यूज़ करना है हैव. ठीक है, so that is the formation of present perfect tense. Over here, I have finished the last slice of pizza. So here, students, I is the subject, right? Depending on that we have to use has or have, right? जैसे कि has हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो यहाँ पे हमने I के साथ क्या यूज़ किया है? have. Then finished, it is the past participle of the verb, and the remaining portion of the sentence. I have finished the last slice of pizza. Okay, so in the same way you have to carry out the exercise over here, और आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है और फिर से सेंटेंस लिखना है, एंड यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. For example, if you see the first sentence, my brother have changed schools. So here, students, my brother is singular, right? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैव हम यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़, राइट? तो हमारा आंसर क्या होगा? माई ब्रदर हैज़ चेंज्ड
schools. Right? In the same way, you have to carry out the rest of the exercise also, all the sentences. Now we'll see how to form negative sentence. The only thing we are going to add in negative sentence is not. ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैव नॉट या फिर हैज़ नॉट लिखते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है हैवेंट, राइट, और वैसे ही हैज़न्ट जो हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. So now let's see interrogative sentences. Interrogative sentences means you have to form yes or no questions या फिर WH वाले questions होते हैं, right? And in present perfect tense you just have to bring your auxiliary verb has or have first और उसके बाद आप subject लिखोगे, ठीक है? और अगर नेगेटिव भी है साथ में इंटरोगेटिव के साथ तो आप हैज़ या हैव उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, और यू कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर है. सी द फर्स्ट सेंटेंस, हैज़ सारा बीन टू लंदन, राइट. नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, सारा हैज़ बीन टू लंदन, तो उसमें हमने जो हैज़ है उसको पहले ले लिया, राइट. उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, देन अवर वर्ब जिसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, and then remaining portion. In the same way, if the sentence is negative, you can write has Julia not left from Mysore yet, or you can also write in another way, hasn't Julia left for Mysore येट. ओके, तो हैज़ और नॉट अलग अलग लिखने के बजाय आप उसका कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो, हैज़न्ट, एंड देन यू कैन राइट योर सब्जेक्ट. ओके, सो दैट इज हाउ यू फॉर्म योर इंटरोगेटिव yes and no question. Now in the same way, when you are forming the question with what, when, who, where, whom, right, उसके अंदर भी हमारा जो परफेक्ट टेंस है उस हिसाब से ही यूज़ करोगे, ठीक है. लेकिन उसमें हम लोग सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे और हैज़ और हैव जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो WH के वर्ड के बाद आएगा, जैसे कि इसमें है वॉट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, राइट. सो वॉट इज़ द WH वर्ड, उसके बाद यू के साथ यूज़ होता है हैव, देन यू गॉट इन योर पॉकेट. ओके, इन द सेम वे व्हेन हैज़ शी नॉट स्पोकन द ट्रूथ. Now instead of writing has she not, you can write when hasn't she spoken the truth. Okay, and you have to do this exercise which is related to it. You have to form the questions over here. Okay, now the second thing which we are going to learn is present perfect continuous tense. Now present perfect continuous tense and past perfect continuous tense, ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी कोर्स बुक में जब पढ़ा था तब भी उसके ग्रामर के साथ हमने पढ़ लिया था. सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट टॉपिक क्विकली. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब हम कौन सी एक्शंस की बात करेंगे इसके अंदर, उस एक्शन की बात करेंगे विच स्टार्टेड इन पास्ट but has continued to the point of speaking. That means we will be talking about the actions which already started in past. Past में वो action start हो गई थी. And when we are talking about that action, it is still going on at that moment in the present. मतलब present में भी वो action जो past में start हुई वो अभी भी चल रही है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. And while using this tense, यूजुअली वी स्पेसिफाई द टाइम पीरियड, ताकि हमें पता चले कि कितने टाइम पहले वो एक्शन स्टार्ट हुई थी, और वो हम किस वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर, ठीक है. वी यूज़ दोज काइंड ऑफ वर्ड्स टू स्पेसिफाई द टाइम पीरियड, ठीक है. वो टाइम पीरियड दिखाने के लिए हमें ये वाले वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है. For example, post has been rowing the boat for an hour. That means students कि ये जो पोस्ट है वो 1 घंटे पहले उसने रोइंग स्टार्ट की थी,
right? Rowing the boat he started 1 hour back in the past, and he is still doing the same thing when we are talking about it in the present, right? इसीलिए हमने यूज़ किया है has been rowing. सो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स? हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. कौन सा वाला फॉर्म? ING. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें हैज़ या हैव डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, राइट? अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ करोगे, और उसके अलावा जो भी है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ आप यूज़ करोगे हैव. देन यू हैव टू ऐड द वर्ड बीन एंड देन वर्ब आईएनजी. वर्ब आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, Bruno has been barking for last 1 hour. That means he started barking 1 hour back, right? और वो अभी तक बार्क कर रहा है ना? तो यहाँ पे हमने has, उसके बाद been और फिर जो bark है उसका ing फॉर्म यूज़ किया हुआ है. Okay? So students, I hope that you are clear with present perfect continuous tense also. So we would be moving with past perfect tense. अभी past perfect tense मतलब सबसे पहले वो actions तो ख़त्म हो चुकी है, right? We are talking everything which has happened in past. But in past perfect हम लोग 2 action की बात करते हैं, ठीक है? past में 2 actions हुई है, but 1 action completed at given moment. मतलब जब दूसरी action start हुई, ठीक है, उस वक्त वो पहली एक्शन ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है? सो दैट इज रिगार्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन मोमेंट इन द पास्ट, राइट? दैट मीन्स देयर माइट बी 2 एक्शंस and first action completed when the second action happened. Okay, that's how it works in past perfect tense. For example, GT had already eaten the chocolate before Post found out. So students, here we have 2 action. One is eating of chocolate and the second one is finding out. Right? GT का chocolate खा जाना और दूसरा action है Post का found out करना. और जब हम बात कर रहे हैं that is right now. So we are going to use the past perfect tense for the first action. ठीक है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज़ करेंगे? जो एक्शन पहले ख़त्म हो गई, राइट? और जो दूसरी एक्शन हुई उसके लिए हमें पास्ट टेंस यूज़ करना है. रिमेंबर दैट. ओके, सो GT हैड ऑलरेडी ईटन द चॉकलेट बिफोर पोस्ट फाउंड आउट. As Dev stood in front of his house, he realized that he had lost his keys. Now which action happened first? He had lost his keys, right? That is the action which took place first, है ना? और जो उसके बाद जो एक्शन हुई वो थी कि वो घर के सामने खड़ा रहा और उसे रियलाइज़ हुआ. तो यहाँ पे ये जो 2 वर्ब्स है स्टूडेंट्स, stood and realized, ये 2 वर्ब्स जो है वो है हमारे पास्ट टेंस में, क्योंकि ये दूसरी एक्शन थी, लेकिन पहली एक्शन जो थी वो थी खो जाना चाबी का. सो दैट इज़ आवर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड लॉस्ट. ओके, सो हाउ डू यू फॉर्म पास्ट परफेक्ट? वी हैव टू यूज़ हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ V3. ठीक है, और यहाँ पे हैड आप यूज़ कर सकते हो वेदर योर सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, एंड व्हेन यू आर फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंस यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट अलॉन्ग विथ इट. जैसे कि सनी हैडंट बीन टू द सिटी बिफोर, है ना? तो यहाँ पे हैड नॉट लिख सकते हो या फिर हैडंट शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो.
वैसे ही हैड नॉट ईटन द पिज़्ज़ा बिफोर ही केम टू द सिटी. And in the same way, we are also going to form interrogative sentence, right? If it is WH question, we begin with the question work और उसके बाद हम had लगाते हैं, है ना. had क्योंकि क्वेश्चन है इसीलिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखना है, जो had है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द वर्ब विच इज पास्ट पार्टिसिपल. ओके. Where had you been all this time? So here if you see students, where is our WH word. उसके बाद हमने auxiliary verb had use किया है. Then we have our subject you and then our verb which is past participle, right? be का past participle be, was और been. ठीक है. तो been क्या है हमारा past participle है word be का. Why had the show been cancelled? Here also students why लिखा है पहले, उसके बाद had जो auxiliary है, the show that is our subject and then been. Okay. And if your sentence is if your question is yes and no question, मतलब WH वाला word नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, अपना जो auxiliary word है had, है ना, वो पहले लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल. हैड यू आस्क्ड योर मदर बिफोर एनरोलिंग फॉर समर कैंप. सो योर स्टूडेंट्स हैड वो क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर यू है जो सब्जेक्ट है एंड देन आस्क्ड विच इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आस्क. ठीक है. So that is how you form your interrogative sentences. Now exercise F given over here students is related to that exercise, only past perfect के related है. I'll just tell you how to do the first one. बाकी सारे sentences का PDF भेज दिया है मैंने और explanation भी भेजा था. If you are not able to understand, you can go through those videos again ताकि आपको clear हो जाए. ठीक है. Let's see the first one. We immediately dash Abhishek even though he dash his hair long. Right. So अभी जब आपको ऐसे दो blanks दिए हैं, right, तो इसका मतलब होता है कि दो एक्शंस हुई है पास्ट में, है ना. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली एक्शन पहले हुई है और कौन सी बाद में, और जो एक्शन पहले होती है उसके लिए हमें परफेक्ट टेंस यूज़ करना है ना, पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरी हुई है उसके लिए हमें सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ करना है. सो हियर द एक्शन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, राइट, अभिषेक, वो एक्शन बाद में हुई है. पहले कौन सी एक्शन हुई थी, बाल के ग्रो होने की, राइट. सो पहली ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, वी इमीजिएटली रिकॉग्नाइज्ड अभिषेक इवन दो ही हैड ग्रोन हिज हेयर लॉन्ग. Okay. In the same way you have to carry out the exercise which is given over here. Okay. Now let's move on to past perfect continuous tense. Now in past perfect continuous tense students, we need to remember that we are talking about two actions here also. ठीक है. लेकिन पहली एक्शन उसी वक्त ख़त्म हुई जब दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई, राइट. यू नीड टू रिमेंबर दैट कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम किसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट दैट इज स्टिल गोइंग ऑन और हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एट अ गिवन पास्ट मोमेंट. दैट मीन्स जब दूसरी एक्शन हुई उस वक्त वो एक्शन कंटिन्यू हो रही थी और तब भी ख़त्म हुई थोड़ी देर में, या फिर वो उसी वक्त ख़त्म हो गई, ठीक है, जब दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई. जबकि पास्ट परफेक्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं, फर्स्ट एक्शन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हेन द सेकेंड एक्शन टुक प्लेस, है ना. वो पास्ट परफेक्ट होता है जिसमें पहली एक्शन ख़त्म हो चुकी होती है जब दूसरी एक्शन होती है. लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस एक्शन की बात करते हैं जो या तो चल रही थी जब दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई तब, या फिर उसी वक्त ख़त्म हुई जब दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई. ठीक है. So that is your past perfect continuous tense. For example,
GT has been singing for 2 hours when Post unplugged her guitar. That means here if you see students, GT had been singing for 2 hours. मतलब वो पिछले 2 घंटे से गाना गा रहा है. Right? He had been singing for 2 hours. When Post unplugged her guitar. जब पोस्ट ने उसका गिटार अनप्लग किया तब तक वो क्या कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था. राइट और जैसे ही उसने अपना गिटार अनप्लग्ड कर दिया वैसे ही उसका सिंगिंग रुक गया. सो स्टूडेंट्स, हाउ डू यू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इन दैट वी वुड बी यूजिंग हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी. ठीक है, वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म में होगा, आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. ठीक है, और हैड बीन लिखना है. सो यू नीड टू रिमेंबर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब 2 एक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर भी, लेकिन जो पहली एक्शन है वो शायद चल रही है या फिर ख़त्म हो गई जब दूसरी एक्शन ने स्टार्ट हुआ, मतलब दूसरी एक्शन होना जब स्टार्ट हुआ. एट दैट मोमेंट व्हेन द सेकेंड एक्शन टुक प्लेस, एट दैट मोमेंट द फर्स्ट एक्शन माइट बी जस्ट कंप्लीटेड या फिर वो अभी भी चल रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द इवेंट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 3 days. सो योर स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि ये जो एक्शन की बात हो रही है वो पास्ट में 3 दिन पहले चालू हुई थी और अभी हाल ही में चल रहा है. राइट, द इवेंट इज स्टिल गोइंग ऑन. राइट, सो हैड बीन गोइंग. ओके, द इवेंट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 3 days. विभूति हैड बीन फीलिंग नर्वस ऑल डे. दैट मीन्स उसका जो नर्वस फीलिंग है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे और अभी डे ख़त्म होने आया बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन. राइट, या फिर तीसरा वाला जो सेंटेंस है, द ट्रेन हैड बेयरली बीन इन मोशन फॉर एन आवर व्हेन इट स्टॉप्ड अगेन. सो हियर दिस एक्शन व्हेन इट स्टॉप्ड अगेन. राइट, व्हेन ये जो एक्शन हुई, ठीक है, एट दैट सिंस दैट टाइम तक पास्ट में जब भी चल भी रही थी तब भी वो काफ़ी स्लो थी 1 घंटे से और रुक रुक के ही चल रही थी. ठीक है, सो आई होप दैट यू आर क्लियर विथ योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो. हियर यू हैव एन एक्सरसाइज, वो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर सेंड कर दिए हैं तो आप देख सकते हो उसके अंदर. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर. एंड एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो हमने लाइव क्लास में भी पढ़ा था और मैंने वीडियोस भी भेजे हैं. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो. एंड इन द सेम वे द लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18 which is related to sentences, that is also done. And if you have any doubt you can WhatsApp me on my personal number. Okay, all the best students for your exam and score well. Thank you.